اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں پابندی سے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی اچھی خوش کر دینے والی خبر میری نگاہوں کے سامنے۔ جی ہاں، UPSC کے ایگزام میں، امتحان میں مسلم بیٹیوں نے پھر نام روشن کیا۔ الحمدللہ، 3 بیٹیوں کے سر SDM کا تاج اور 2 کے سر پر DSP کا تاج سجے گا۔ UPSC کا رزلٹ گزشتہ جمعہ یعنی 7 اپریل کو جب منظر عام پر آیا تو یہ بڑا فخر کا لمحہ تھا کہ مسلم بیٹیوں نے اپنی کارکردگی سے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے جب 3 مسلم بیٹیاں UPSC امتحان میں نمایاں کارکردگی انجام دیتے ہوئے SDM بن گئیں، اور 2 دیگر مسلم بیٹیوں نے اپنے لیے DSP بننے کی راہ ہموار کر لی۔ اور یہ بھی بات ہے کہ مسلم سماج سے ایک بھی نوجوان SDM نہیں بن پایا۔ ویسے 3 نوجوان DSP بننے میں ضرور کامیاب ہوئے ہیں۔ بہرحال مسلم بیٹیوں کی بہترین کارکردگی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 3 بچیوں نے ٹاپ 15 میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ لکھنؤ کی سلطنت پروین کو 6واں، اندور کی محسنہ بانو کو 7واں اور باندہ UP سے تعلق رکھنے والی فرحین زاہد کو 14واں مقام حاصل ہوا ہے۔ اور وہ 2 مسلم بیٹیاں جنہوں نے ڈپٹی SP بننے کی راہ ہموار کی ہے، ان کے نام ہے عاصمہ وقار اور ریشمہ آرا۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی عجیب و غریب خبر آ رہی ہے۔ بابری مسجد ہم نے توڑا، یعنی یہ آتنکواد کا کریڈٹ لینے کے لیے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ خیر، اس وقت یوں سمجھیے کہ بابری مسجد کے تعلق سے شیوسینا کے بھاجپا کے چندرکانت پاٹل کا بڑا بیان آیا ہے، جس پر ادھو ٹھاکرے غصہ ہو گئے۔ چندرکانت پاٹل نے کہا کہ بابری مسجد شہید کرنے کا بال ٹھاکرے نے جھوٹا کریڈٹ لیا، سب سے آخر میں ہم نکلے تھے، اور پھر کہا کہ شیوسینا کا کوئی بھی آدمی وہاں پر نہیں تھا۔ چندرکانت پاٹل کے اس بیان سے ادھو ٹھاکرے بڑے غصے میں آ گئے اور ادھو ٹھاکرے نے ان کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ تو لگا سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ بابری مسجد کو گرانے والے کو مجرم اور آتنک بتا رہی ہے، اور یہ لوگ آپس میں کریڈٹ لینے کے لیے لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے۔ جی ہاں، حالانکہ یہ انٹرنیشنل نیوز ہے لیکن نیشنل نیوز میں اسے شامل کر رہا ہوں۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں ایک امام مسجد پر کسی شخص نے حملہ کیا۔ خبریں آ رہی ہے کہ اسے 20 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ یعنی امریکہ میں کتنی فاسٹ فیصلے آ رہے ہیں۔ فجر کی نماز کے دوران جو امام مسجد پر حملہ کیا جس شخص نے، اس کو 20 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ ایک ہی دن میں یہ معاملہ سامنے آ گیا۔ یہاں پر تو امام مسجد کو قتل بھی کیا گیا، مسجد میں آگ بھی لگا دی گئی، مصلیوں پر بھگوا آتنکوادیوں نے حملے کیا، مگر کسی کو آج تک کوئی سزا سنائی نہیں گئی۔ چلیے آئیے، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ہمارے پیارے ریاست مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شندے اور فڑنویس
अयोध्या गए थे। तो अब अपोजिशन तो काफ़ी कमेंट कर रही है कि बहुत ज़रूरी था, पाक होने के लिए वहाँ जाना ज़रूरी था। खैर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, लेकिन अभी एक खबर बड़ी छाई हुई है कि शिंदे के साथ जो प्लेन उनको वहाँ पर अयोध्या ले गया, उसमें एमएलए और एमपीस को उत्तर प्रदेश ले जाया गया था, यानी अयोध्या ले जाया गया था, लेकिन शिंदे के साथ गैंगस्टर भी अयोध्या गया। जो प्राइवेट उनका जो प्लेन है उसमें गैंगस्टर भी अयोध्या गया, जिसको लेकर अब सियासी पारा गर्म हो गया है। जराये के मुताबिक सुदेश मस्कर, जिसे सुदेश अभंगे के नाम से जाना जाता है, ये थाने का रहने वाला है। इस पर हमला, भत्ताखोरी, फसादात, दंगे कराना, मौलिक हथियार ले जाना और जालसाजी के कई मुकदमात का ये सामना कर रहा है। लेकिन ऐसे गैंगस्टर और ऐसे नापाक लोग भी बाकायदा राम मंदिर के दर्शन में शिंदे के साथ शामिल थे। अब ये तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें शिंदे के साथ गैंगस्टर भी यानी नापाक किस्म का मुजरिम आदमी भी बाकायदा साथ गया, जिसको लेकर अब सियासी लोग काफ़ी शिंदे और फडणवीस को निशाना बना रहे हैं। और इस गैंगस्टर, इस मुजरिम को अयोध्या ले जाने पर अब उद्धव ठाकरे के ग्रुप ने सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि पहले तो आपने गद्दारों को गुजरात ले गया और उन्हें वॉशिंग पाउडर से साफ किया, और अब आप एक गैंगस्टर को बाकायदा पवित्र ज़मीन अयोध्या पर ले जा रहे हैं। क्या ये काबिल कबूल है? कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आइए नाज़रीन, बड़ी बुरी खबर आ रही है। जी हाँ, दिल्ली में 250 साल पुरानी कदीम मस्जिद पर बुलडोज़र चला दिया गया। बंगाली मार्केट में सरकारी अमले ने मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान के 2 कमरों और दीवार को मुनहदिम कर दिया। इंतज़ामिया पर बिना नोटिस के कार्रवाई का इल्ज़ाम लगा है। इस पर मुखालिफत करने पर एडवोकेट महमूद पराचा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बंगाली मार्केट में मस्जिद पर बुलडोज़र कार्रवाई को लेकर महमूद पराचा मुखालिफत कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद पराचा को दिल्ली पुलिस हिरासत में ले जाते हुए नजर आ रही है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी आप जानते हैं कि सोनीपत में किस तरीके से भगवा आतंकवादियों ने मस्जिद पर हमला किया, वो सारी तस्वीरें कल हमने आपको बताई थी। इस वक्त खबरें आ रही है कि जमीयत उलमाए हिंद का एक वफ्द सोनीपत पहुंचा, वहां मस्जिद हमला से मुतासरीन लोगों से मुलाकात की, हमला आवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुतासरीन को माकुल मुआवजा देने का मुतालबा किया। इस वक्त में मौलाना याह्या करीमी के अलावा मौलाना अजीमुल्लाह सिद्दीकी कासवी, दफ्तर जमीयत उलमाए हिंद, हाजी इकराम सदर जमीयत उलमा पानीपत, मौलाना नाजिर करीमी, मौलाना साजिद कासवी और मकामी आलिम दीन मौलाना कारी जाहिद हुसैन शामिल थे। इस वक्त ने सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचकर बाकायदा 84 साला उस बुज़ुर्ग से मुलाकात की जिन पर जो ज़ख्मी हुए हैं। उन्होंने बताया उस बुज़ुर्ग ने कि बग़ैर किसी झगड़े और तनाव इन शरपसंदों ने नमाजियों पर हमला कर दिया, और उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं था, हमला आवर हमारे पड़ोसी है। जब मुल्क तकसीम हुआ बड़ी तादाद में लोग हिजरत कर गए, लेकिन मैंने इस धरती को चुना। मैं आज 84 साल का हो गया हूँ, इनमें से बहुत सारे लोगों के दादा परदादा की उम्र का हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ अपने वतन में ऐसा होगा। आज मेरा हाथ टूट गया, लेकिन इससे ज़्यादा मेरा दिल ज़ख्मी है। खैर, जमीयत के वफ्द ने उनका हौसला बढ़ाया और मुजरिमीन पर, हमला आवर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। आइए नाज़रीन, बड़ी अजीब खबर आ रही है। आप जानते हैं कि अरविंद जी केजरीवाल की पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया। जी हाँ, जिस पर केजरीवाल और उनके तमाम लोगों ने बड़ी खुशियाँ मनाई, और केजरीवाल का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि ईमानदारी, हुब्बुल वतनी और इंसानियत हमारी पार्टी के 3 मजबूत सुतून हैं। लेकिन वहीं पर तृणमूल कांग्रेस, जो इनसे कई ज़्यादा पुरानी पार्टी है, उसे नेशनल पार्टी के दर्जे से महरूम कर दिया गया। यानी पहले नेशनल पार्टी का दर्जा था, आज वो नेशनल पार्टी के दर्जे से महरूम कर दी गई।
अब इस पर तृणमूल कांग्रेस की लीडर ने कहा कि हम अदालत जाने पर गौर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के जरिए कौमी सियासत का दर्जा छीने जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर गौर कर रही है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इसमें कहीं तो कुछ तो गड़बड़ नजर आ रही है, कहीं तो कुछ तो गड़बड़ नजर आ रही है। अगला दिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि अब दुनिया में मुसलमानों की आबादी 2 अरब से ज़्यादा हो गई है और कहा जा रहा है कि 2060 तक 3 अरब ये आबादी होने का इम्कान है। ईसाइयत के बाद इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा मज़हब बन गया है। दुनिया की मजमूई आबादी 8 अरब से ज़्यादा है, जिसमें मुसलमानों की आबादी 2 अरब से ऊपर चली गई है, यानी 25% आबादी के साथ इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा मज़हब बन गया है। ग्लोबल मुस्लिम पॉपुलेशन वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में मजमूई 8 अरब से ज़्यादा आबादी में मुसलमानों की आबादी 2 अरब से ऊपर चली गई है, जो दुनिया की मजमूई आबादी का 25% है। इस तरह ईसाइयत के बाद इस्लाम 8 अरब से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बर्र-ए-आज़म एशिया और अफ्रीका के 26 मुल्कों का सरकारी मजहब इस्लाम है और ये दुनिया में सबसे तेज़ी से फैलने वाला मजहब भी बन गया है। शायद इसीलिए इस्लाम और मुसलमान दुश्मन ताकतें इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए काम कर रही है और इस्लामोफोबिया का माहौल बना रही है। आइए बड़ी खबर आ रही है, आरएसएस जो मुल्क की सबसे शरीफ तंजीम है, जिसका आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं था, शरीफ तंजीम है, लड़ते नहीं बेचारे, तो आरएसएस के सड़क मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। तमिलनाडु हुकूमत ने हालांकि अर्जी दिया था कि इनके सड़क मार्च से मसाइल पैदा हो सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु में अमन और अमान के मसाइल पैदा हो सकने वाली तमिल हुकूमत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी, निकाल कर फेंक दी और आरएसएस को सड़क मार्च की सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी, यानी इजाज़त दे दी है। अब देखना यह है कि इन शरीफों के सड़क मार्च से मुल्क का अमन व अमान कितना बाकी रहता है। अगला दिन बड़ी खबर आ रही है, आप जानते हैं कि हमारे इस प्यारे मुल्क में किस तरीके से मुसलमानों पर अक़लियतों पर हमले हो रहे हैं। अभी रामनवमी के बाद तो पूरे मुल्क में भगवा आतंकवादियों ने नंगा नाच खेला, लेकिन खैर यहाँ की आतंकी मीडिया और खरीदी हुई दलाल रखेल मीडिया इसको इस अंदाज में बयान नहीं करती, मगर दुनिया में तो ये वीडियो सोशल मीडिया के ज़रिए से काफ़ी वायरल हो रही है, जिसको लेकर अब अमेरिका में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में हिंदुस्तान में जो कुछ मुसलमानों के साथ किया जा रहा है इस पर बहस हो रही है। इसको लेकर निर्मला सीतारमण जो हमारी यहाँ की वजीर फाइनेंस है, ये तिलमिला उठी। जब कोई इन पर थूकता है तो ये तिलमिलाते हैं, लेकिन बाहर लोग थूक भी रहे हैं और सुसु भी कर रहे हैं। तो अब निर्मला सीतारमण ने बिल्कुल कहा कि ये बातें झूठी है और जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पर मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, वो यहाँ आएँ और ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें, क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी दुनिया में दूसरी बड़ी आबादी है और इन्होंने कहा कि अक़लियत यहाँ पर भरपूर तरीके से तरक्की कर रही है, उन्हें यहाँ तरग़ीबात दी जा रही है और वो मुल्क में अपनी तिजारत को बढ़ा रहे हैं। मैडम, तिजारत को बढ़ाना और तरक्की करना और अपनी दुकानें चलाना मसला ये नहीं है। आप खुल्ला ये कहो कि यहाँ पर भगवा आतंकवादी हमले कर रहे हैं और हम पूरी तरीके से खामोश है, हमारा पीएम नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से खामोश है। ये सच्चाई है कि हिंदुस्तान में अक़लियतों पर जुल्म हो रहा है और यहाँ की रखेल मीडिया नहीं दिखा रही है, मगर सोशल मीडिया के ज़रिए से दुनिया में जब वीडियोज़ वायरल हो रही है तो पूरी दुनिया बीजेपी पर थूक रही है और सूसू भी कर रही है। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहें कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं
और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है, आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।